नमस्ते, स्वागत है आपका इंडिया दिस वीक के नए एपिसोड में और मैं हूं आपकी होस्ट आमना अंसारी। Hi, this is Khalid Beg, and welcome to yet another episode of India This Week. Today, we have a very important topic, and we have two special guests. The topic is about the decision on 6th December by Kingdom of Saudi Arabia, which sent shockwaves and stunned the entire Islamic world, along with that, the larger world as well, about basically Kingdom of Saudi Arabia calling for a ban on Tablighi Jamaat. So to join us for this discussion, we have Solia Keen with us. Solia Keen is a cultural critic. He's a poet. He's a writer. Welcome, Solia. Hi. Hi, And Khalid. we also Hi, have Amna. Arshia Malik, who is an educationist, who's a columnist, who's a writer. You read her columns many times in Times of India. She also writes for other publications. Welcome, Arshia. Hi, Khalid. Thank you for calling me here. Hi, Amina. Hi, Hello. Solia. Nice to see Hi, you. Ashia. Okay, right. So we have a great panel today to discuss this issue. Now, what exactly happened on 6th of December, which stunned everybody, and nobody would have ever imagined from our generation, at least, this happening. So exactly, we'll drive the audience through this. You had a series of tweets by the Ministry of Islamic Affairs, by the Kingdom of Saudi Arabia, in which they categorically said that they're banning the Dawa and Tabligh group, also known as Al-Aba, and that is a dangerous organization. They didn't stop there, and they went ahead and made a very serious charge of saying that this is a gateway to terrorism, and from now on this organization is banned. Anybody even affiliated with it will invoke charges and will be charged by the law. Amna, I mean, what's happening here? I mean, Tablighi Jamaat getting banned by Saudi Arabia. बाहर से देखने में तो ये बहुत ही शॉकिंग लगता है, बट अगर आप इसको थोड़ा अंदर से समझेंगे तो एक आप बोल सकते हैं कि वहाबिज्म और देवबंदी के बीच में कन्फ्लिक्ट भी दिखता है यहाँ पे। तो इंटरनली देवबंदी का ऑफशूट है, तो नेशनल इंटरेस्ट में तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि बेसिकली उन्होंने अपना नेशनल इंटरेस्ट चूज किया है अबव यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड के ऊपर, राइट। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई शौक होने की बात है, इसको समझने की बात है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों है। Right. But अजीब सी भी बात है, right? I mean, 30 years back when Muslims from the subcontinent, Indians, Pakistanis, Bangladeshis, they were taught that, the faith you're following with the certain customs is not right, where culture was mixed with, politics, with nation, with, everything. And today they are being told, no, what we said that time is not right. So, I mean, अफसोस की बात है, right? We need to find that these are all different things, right? या अब जब खुद के नेशनल इंटरेस्ट की बात आई है और खुद पॉलिसी चेंज करने हैं, तो जिन चीजों को इन्होंने दुनिया में एक्सपोर्ट किया वही उनको सही नहीं लग रही है अपनी कंट्री के लिए, राइट। तो अभी यहाँ पे ये बहुत बड़ा सबक होना चाहिए इंडियन मुस्लिम का यहाँ पे, कि वो इस बात को समझें कि रिलीजन, कल्चर और नेशन किस तरह से अलग अलग होते हैं और आपकी लॉयल्टी कहाँ पे है बेसिकली, राइट। ठीक है, आमिना आप शुरू कीजिए आज का सिलसिला। ठीक है, आई थिंक मैं थोड़ा बहुत तबलीगी जमात के बारे में बैकग्राउंड ही बता देती हूँ कि स्टार्ट तो इंडिया से हुआ था। इंडिया के मेवात रीजन में 1926-27 के आसपास इसका फाउंडेशन हुआ था। एंड जब ये मौलाना इलियास ने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे उनका फोकस सिर्फ मुस्लिम्स थे, उनको बेटर मूवमेंट बनाना था। बट अभी इसका फॉर्म हो चुका है कि इनको इस्लाम हर जगह उसकी दावत देनी है और इस्लाम फैलाना है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबके बीच में, राइट। एंड जो करंटली इंडियन तबलीगी जमात है, वेरी लाइक नोबडी नोज अबाउट इट, बट उसके 2 टुकड़े ऑलरेडी हो चुके हैं। तबलीगी जमात का जो फिलॉसफी है वो है ओ मुस्लिम बी मुस्लिम, मतलब मुसलमानों मुस्लिम बनो, राइट। और वो बोलते हैं कि बेसिकली उनका फिलॉसफी है कि जो मध्य युगीन था ना, मध्यकाल की जो मानसिकता थी पुरानी, उसको फॉलो करे आज का मुस्लिम। एंड उसके साथ में बोलते हैं कि इस दुनिया के लिए नहीं जीना है, इसके बाद जो आएगा उसके लिए जीना है। बट विद इन उसी ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं कि पावर के लिए इस तरह से पॉलिटिक्स होता है कि 2 टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि सबको उसका हेड बनना है, राइट। तो अपने आप में बहुत कंट्राडिक्टिव लिए हुए है ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसपे हम बात करेंगे वक्त के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि पहला क्वेश्चन मैं सुलैकिन से पूछना चाहती हूँ। सुलैकिन, आप देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कंट्री में बैन है, ईरान में, रशिया में, तुर्कमेनिस्तान में, एंड देयर आर मोर कंट्रीज लाइक दैट।
एंड अब सऊदी में भी हो गया है। तो आपका इसके ऊपर क्या दृष्टि है, आप कैसे देखते हैं इसको? हाँ, थैंक यू आमना। तो जब मैंने ये सुना कि ये बैन हो गया, सऊदी अरबिया ने बैन किया, तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ, आश्चर्य और हंसी भी आई, क्योंकि अगर तबलीगी जमात जो है वो गेटवे टू टेररिज्म है, तो सऊदी अरबिया का जो वहाबी और सल्फी जो मूवमेंट, जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने 50 साल में खर्च किए, तो वो तो फिर रास्ता नहीं है, वो तो पूरा इमारत है फिर टेररिज्म का। सऊदी अरबिया जब ये मतलब तबलीगी जमात को जब ऐसे बैन करता है, तो इनडायरेक्टली उनका क्या मतलब है? उनका मतलब ये है कि जो भी कोई एंटी मॉडर्निस्ट मूवमेंट है, हाँ, एंटी मॉडर्निस्ट, एंटी वेस्टर्न, जो बेसिकली इस्लामिक सोशल ऑर्डर, नॉट पॉलिटिकल बट सोशल ऑर्डर करे नीचे से, क्योंकि पॉलिटिकल में घुस जाएंगे तो हर किसी के नजरों में आ जाएंगे इमीडिएटली। तो इस तरीके से क्या, वो नीचे से, उनका मतलब ये था कि लॉन्ग गेम के नीचे से इंडिविजुअल को टारगेट करो, और मुस्लिम के, अगर नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हो तो नॉन मुस्लिमों को मत टारगेट करो, नहीं तो वो फिर होशियार चौकन्ना हो जाएंगे। तो सऊदी अरबिया ने क्या किया, तुमको अगर याद होगा कि 1979 में वहां अटैक हुआ था हाउस ऑफ सऊद, जो ग्रैंड मॉस्क है मक्का में। तो वो कौन लोग थे? वो कुछ लोग थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, और उन्होंने बोला कि ये सऊदी अरेबिया को जो है पेट्रो डॉलर मिल गया और ये सब, तो उनको लगता है कि ये खुदा की देन है उनको आगे बढ़ाने की। तो ये नहीं है, ये वेस्टर्न हो रहे हैं, इनके पास माल आ रहा है, इनका लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रहा है, तो हटा दो। तो उसमें कुछ और भी था, वो महदी एंड ऑल दैट क्लेम, तो वो छोड़ो। तो लेकिन सऊदी अरेबिया का उस वक्त का क्या रिएक्शन था कि अगर कोई तुमको एक्यूज कर रहा है कि यू आर नॉट फिट टू बी अ रूलर, तुम हुक्मरान मतलब बादशाह होने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम मुसलमान, काफी मुसलमान नहीं हो, तो क्या रिएक्शन होना चाहिए? कि एक्सट्रीमिस्ट जो भी हैं, जो भी एंटी स्टेट एक्सट्रीमिस्ट है, इस्लाम के बलबूते पे जो हार्ड लाइन ऑर्थोडॉक्स है, प्यूरिटिकल है, उनको उनको जो है, उनको उनके ऊपर क्रैक डाउन करो। लेकिन सऊदी ने क्या किया है? उन्होंने उनको क्रैक डाउन किया, उनको मार, गिरफ्तार किया, ट्रायल की, मार डाला। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो ऑफसेट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, ताकि हमको कोई ये ना बोले कल फिर से उठ के मुंह उठा के कि तुम मुसलमान पूरे नहीं हो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्यादा इस्लाम पे ज्यादा स्ट्रेस किया। तो उन्होंने क्या किया, वो जो मॉरल पुलिस है, उन्होंने वो क्रिएट किए कि उन्होंने बोला कि कोई मतलब जेंडर सेग्रीगेशन नहीं होगा, मतलब जेंडर सेग्रीगेशन होगा कि औरत जो है ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, ड्रेस के बारे में, इस चीज के बारे में एंटी वेस्टर्न। तो उस तरीके से उन्होंने अपने अवाम का मुंह जो है मुत्तवा के डंडे से बंद कर दिया। और जबकि सऊदी अरब के जो प्रिंस वगैरह, जो रॉयल्टी थे, वो अयाशी करते थे इधर उधर, मतलब वो अपना बुर्का जो है एयरपोर्ट पे ही निकालते थे और उधर से ही चले जाते थे कहीं, मतलब शराब पीने, ना करने, कुछ भी जो उनका करना था वो करते थे। तो 50 साल उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बढ़ावा दिया ऑर्थोडॉक्स प्यूरिटिकल कि एंटी मटेरियलिज्म नहीं, ये दुनिया कुछ नहीं है, आखिरत ही सब कुछ है। लोगों को लाइन में रखने के लिए अपना लाइफस्टाइल एंजॉय किया। और क्या किया कि दुनिया भर में उन्होंने इस चीज को कि ऐसा क्यों है कि कोई साउथ ईस्ट एशिया में है, साउथ एशिया में है, वो दूसरी किताब पढ़े। वो चाहते थे कि ये सल्फी, ये वहाबी जो है, एक ही सेट, एक ही पूरी दुनिया को यूनाइट करे, मुसलमानों को अंडर वन बैनर। तो वो उनके उस वक्त, क्योंकि इंपीरियल दौर ही था, तो उनके वो क्या कल्चरल इंपीरियलिज्म था अरब का। तो तो लेकिन क्या बेसिकली हुआ कि उन्होंने अभी इंटरप्रिटेशन एक पेट्रोल ही चाहा, पेट्रोल हाँ, लेकिन वो क्या एक ही हुआ अब इंटरप्रिटेशन। कि, क्या हुआ अब कि पेट्रोल जो है वो खुशक हो गया। अब आगे, अब ऊंट आ गया वापस पहाड़ के नीचे, और अब बोल रहा है कि अगर मैं पैसे कमाऊं फिर से,
मतलब अयाशी, क्योंकि एक लाइफस्टाइल बन गया है, एक आदत हो गई है पैसों की, तो अयाशी की। तो वो बोल रहे हैं कि हम कैसे वो अपना जो है मटेरियलिस्टिक जो लेवल है वो बरकरार रखें। तो उसके लिए उनको पता है कि अब जो है, अब हज पे जो है, पुराने जमाने में जब पेट्रोल नहीं था, सिर्फ हज की टूरिज्म पे उनका टिकता था, तो अभी वो फ्री भी दे देंगे, तो पेट्रोल था, लेकिन अब पेट्रोल भी नहीं है तो क्या करेंगे। तो उनको पता है कि अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं 21st सेंचुरी में, तो उनके पास 10 साल 20 साल का ये प्लान है कि हमको मॉडर्नाइज करना है। रही बात अब ये जो है तबलीगी जमात, तो ये भी समझो कि उस नेशनलिज्म में एक रेसिज्म भी है, क्योंकि उस 1979 के हाथ मतलब वो अटैक जो हुआ था हाउस ऑफ सऊद पे, तो उसके बाद वो मतलब जो भी मूवमेंट, मुस्लिम मूवमेंट जो भी ओरिजिनेट हुई आउटसाइड अरबिया, तो वो तो कमीने हैं उनके लिए, वो तो खुद मतलब जो है ना रेसिज्म है, तो उनको क्यों चाहिए बाहर से कोई आएगा हमको बताने के लिए। और दूसरी बात जो है कि सल्फी जो उनका था और जो ये तबलीगी जमात, वो अपोजिट साइड के थे, क्योंकि ये बड़े सगीर से आए थे, इंडिया से आए थे, तो इनमें कुछ सूफी और कुछ वैसे एलिमेंट्स भी हैं। तो लेकिन वो जो है सल्फी जो है वो नहीं मानते हैं वो सब चीजें। वो बोलते हैं कि ये जो है ये एक मजार परस्त है, गुनहगार है। तो आमना ने जैसे बोला कि इनको बैन किया है, तो अगर आप नाम देखेंगे कि उन्होंने बैन किया है सऊदी अरबिया से पहले, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कुछ समझ आया? क्योंकि ये सुन्नी मूवमेंट है और वो शिया डोमिनेटेड ये है, तो वो क्यों मानेंगे किसी को अपनी कंट्री में लाना जो बोलते हैं कि ये शिया काफिर है। तो सुन्नी मूवमेंट तो उनसे पहले ही गया। और रही बात रशिया की, वहां कुछ अटैक्स हुए थे और उसमें इनके कुछ मेंबर्स इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने क्रैक डाउन किया। उनको क्या थी, उनको तो कोई सेकुलरिज्म वगैरह कोई मतलब वो नहीं निभाना था, दूर ना ये देखना कि वाशिंगटन पोस्ट क्या बोलेगा या न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने कर दिया। तो उसका भी वजह एक्चुअली सऊदी अरबिया ही है, क्योंकि सऊदी अरबिया जो है वो अफगानिस्तान में पैसा भेज रहा था उन ईरान के खिलाफ, इनके खिलाफ, रूस के खिलाफ, तो उनकी वजह जो है वो जियोपॉलिटिकल रीजंस है। Thank you, Soleh, for a detailed answer. Arshif, coming to you, and I would like play on and add on from where Soleh left. We saw this ban coinciding with this big concert that was done by Bollywood superstar Salman Khan in Saudi, and the numbers didn't look in thousands; they possibly were in lakhs. So many people attending it. And we saw these big ticket reforms being said by King Salman himself, who's currently the king of Saudi Arabia, where he said that, abaya, burqa is now no longer mandatory. We are against gender segregation. People जो gender segregation के बारे में बात करते हैं वो extremists हैं. और उन्होंने ये भी एक अच्छी बात कही कि पे पैरिटी हम लाएंगे बिटवीन डिफरेंट सेक्सेस, तो पे सेम रहेगी. तो इसको आप बैन के बैकग्राउंड में कैसे देखते हैं, और आपकी क्या नॉलेज है कि और क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं वहां वुमेन के लिए? खालिद, पहली बात तो ये, मैं स्केप्टिक हूँ बाय नेचर, तो एनी सॉर्ट ऑफ दिस रिफॉर्म थिंग कमिंग फ्रॉम सऊदी वो भी मेरे लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल है. ये जो सोले ने अभी सारा कहा, सीज ऑफ मक्का 1979 से लेके जो उनका रिएक्शन था इस्लाम फैलाना पूरी दुनिया में, और वो भी हमारा वाला इस्लाम नहीं जिसमें हम पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ इस्लाम, सलाफिस्ट. अब ये कह देना कि जितनी भी किताबें हमने उस टाइम पे डिसेमिनेट की थ्रू आउट द वर्ल्ड उनको वापस बुला रहे हैं, ये इम्पॉसिबल टास्क है. ऑलरेडी इवन कश्मीर के मॉस्क्स में उन्हीं किताबों से पढ़ाया जाता है, प्रीच किया जाता है. फिर ये कहना कि 2-3 साल पहले आई थिंक मनाल शरीफ एक्टिविस्ट थी वहां पे, उन्होंने वो ड्राइविंग का, विमेन आर अलाउड टू ड्राइव, उनके एक्टिविज्म से वो हुआ, तो तब भी लोगों ने कहा कि नहीं, सऊदी इज चेंजिंग. बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं कि MBS is the man who's going to change Saudi's face and all. लेकिन मेरा स्केप्टिसिज्म नहीं मानता है, क्योंकि पहली बात फैक्ट ये है कि रैफ बादावी, ही इज अ ब्लॉगर लाइक मी, मेरे जैसे हेरेसी पे लिखते थे, फ्री थिंकिंग पे लिखते थे, अभी तक जेल में है, अभी तक जेल में है.
वो आराम से इनको रिहा कर सकते थे। दैट वुड हैव बीन द फर्स्ट जेस्चर कि हाँ हम चेंज चाहते हैं। आपको पता होगा कि उनका पनिशमेंट क्या है। एक तो लैशेस भी हैं। उनकी वाइफ इंसाफ हैदर जो उनके लिए कैंपेनिंग करती थी कनाडा में, उन्होंने ये भी कहा है कि वो डायबिटिक है। मैं भी डायबिटिक हूं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसा हॉरेंडस सिचुएशंस होते होंगे। ठीक है। दूसरा ये कि जमाल खशोगी का जो केस है, जमाल खशोगी वाज नॉट अ सेंट, आई एग्री, लेकिन टू हैव हिम किल्ड लाइक दैट, वो भी अगर टर्किश जर्नलिस्ट ने वो अनकवर नहीं किया होता स्टिंग ऑपरेशन से, हमें पता भी नहीं चलता कि जमाल खशोगी के साथ क्या हुआ। ही वुड हैव बीन द जिमी हॉफा ऑफ दिस सेंचुरी, जिनका पता ही नहीं चला। सो ये सारी चीजें हैं। आई बिलीव बिहेडिंग चौक अभी भी है। आई बिलीव कि अभी तक जो एक्चुअल शरिया है जो वो फॉलो करते हैं कि स्टोनिंग फॉर अडल्ट्री, हाथ के बदले हाथ, द टिपिकल शरिया दैट वी हैव, आई थिंक वो सारा इन प्लेस है। मैं कहती हूँ ये सारे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। मैं कहती हूँ इसके पीछे मोटिवेशन जियोपॉलिटिकल है। जैसा सोला ने कहा कि ये ऑयल सूख रहा है एंड वेस्टर्न पावर्स उनके साथ, जो मैंने अपने ट्वीट में भी लिखा था, व्हीलिंग एंड डीलिंग करते रहते हैं, तो देयर इज ऑब्वियसली सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर टू रिफॉर्म। वो रिफॉर्म अंदर से नहीं आ रहा है। जैसे जैसे मैं आजकल बहुत टर्किश लोगों से बात करती रहती हूँ, तो कमाल अतातुर्क ने जब अबॉलिश किया था, दैट रैशनैलिटी सीम टू हैव कम फ्रॉम इनसाइड कि वी नीड दिस, वी आर अ रिपब्लिक, वी वांट टू हैव अ फ्री थिंकिंग सोसाइटी। वो सऊदी में होना बहुत मुश्किल है। एंड आई डोंट बिलीव एंथ्रोपोलॉजिकली ये पॉसिबल है, क्योंकि दे आर अ बर्बर सोसाइटी, दे आर अ डेजर्ट सोसाइटी। एंड डेजर्ट सोसाइटीज को अगर आप स्टडी करेंगे तो विमेन को वो इंडिपेंडेंस देना, इट्स काइंड ऑफ, हालांकि उनमें भी पॉकेट्स हैं, देयर आर सर्टेन ट्राइब्स सऊदी में जो बहुत ही फ्री थिंकिंग में बिलीव करते हैं, पर वो मार्जिनलाइज्ड हैं, तो मेरे को ये बताना कि सऊदी इज चेंजिंग, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट इसमें ये है बिकॉज इंडियन मुस्लिम्स, जैसा मैं कहती रहती हूँ, आई डिवाइड द मुस्लिम वर्ल्ड इनटू थ्री। वन इज द अरब मुस्लिम्स, वन इज द यूरोपियन मुस्लिम्स, एंड वन इज द इंडियन मुस्लिम्स। यूरोपियन मुस्लिम्स में तो बहुत सारा चेंज हो रहा है, उनको यूरोप है गाइड करने के लिए, उनको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो दे विल फाइंड देयर वे इवेंचुअली, कंसिडरिंग द चेंजेस दैट आर कमिंग इन जर्मनी एंड फ्रांस एंड नॉर्वे एंड अदर प्लेसेस। इंडियन मुस्लिम्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा कॉपी करते हैं, एंड उनके लिए जो बेंचमार्क होता है वो सऊदी अरब मुस्लिम्स हैं। तो अगर ये तब्दीली आ रही है कि सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, कॉन्सर्ट्स उन्होंने अलाउ कर दिए हैं, और ये अब ये स्टेटमेंट कहना कि अबैया एंड निकाब आर नॉट नेसेसरी, दे मे बी कॉस्मेटिक चेंजेस फॉर सऊदी, लेकिन मेरे लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, स्पेशली कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका हमेशा रहता है कि सऊदी में तो ऐसे होता है, सऊदी में तो, सऊदी इज लाइक द अल्टीमेट। तो दिस इज अ वेरी वेलकम चेंज फॉर मी, considering from the Indian point of view. Yeah. Right, Amna, if you want to. So I agree to Arshia, maybe ये cosmetic change होंगे, but coming from an Indian Muslim household, मेरे लिए तो ये भी एक होप है। एंड इतना भी अगर इंडियन मुस्लिम समझ लें कि नहीं, वहाँ पे जब चेंजेस आ सकते हैं लड़कियों को लेके, तो यहाँ क्यों नहीं, राइट? सो मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, इसी के साथ आई थिंक मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है सुलैकिन, वो आपसे है। तो अभी ये सब जो भी हम बात कर रहे हैं कि ये कॉस्मेटिक रिफॉर्म हो या रिफॉर्म हो, एंड तबलीगी जमात को बैन करना हो, तो इन सब में हम एक चीज देख रहे हैं कि सऊदी ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को यूनिवर्सल मुस्लिम ब्रदरहुड के ऊपर रखा है, राइट? सॉरी। तो ये जो चेंजेस हैं, क्या ये मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक रिपल इफेक्ट में किसी तरह का लिबरल प्रोग्रेसिव मूवमेंट स्टार्ट करेंगे? और दूसरा कि इससे इंडियन मुस्लिम क्या सीखेंगे? हाँ, सवाल अच्छा है, और हमको जवाब पता है कि इससे बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। क्योंकि मैं जब देखता हूँ अपनी सोसाइटी में, अपनी कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी सोसाइटी में, मैं देखता हूँ कि 30 साल पहले जब था, तो जो भी, अगर मतलब हम देखते हैं पैटर्न, सोशल पैटर्न, कि लोग जो है पावर के पीछे भागते हैं। तो असल में कोई अच्छा रिफॉर्म, खराब रिफॉर्म कुछ नहीं होता, यू हैव टू फॉलो द मनी, क्या उससे सब कुछ होता है। बाकी सब क्या पैकेजिंग होती है कि तुम डेमोक्रेटिक या प्रोग्रेसिव या कुछ बना के पेश करो लोगों के ना शुगर कोट करके। जब मैं 30 साल पहले देखता हूँ, उस वक्त ऐसा था कि अगर कोई
लड़का था जो कुछ ज्यादा ही रिलीजियस जील दिखाता था, नमाज पढ़ता था, वो पढ़ता था, हमसाया लोग वगैरह सब अच्छा लड़का बोलते थे, लेकिन जब शादी करने की आती तो लोग 10 बार सोचते थे कि यार वो रिलीजियस है। मतलब ये कि सोशल जो पैटर्न्स होते हैं वो फिर चेंज हो गया है, क्योंकि फिर जब वही लोग जो है, जो इंजीनियर था और यहाँ जो था जो मॉडर्न था, लेकिन फिर जब वो सऊदी अरबिया गया और वहां दाढ़ी बना के और वो जो है ना अपर लिप साफ करके वापस आ गया, बहुत पैसे वाला इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेकिन वो जो है वो सल्फी माइंडसेट लाया है। और हमारा जो कम्युनिटी था वहाँ वो मतलब जियारत, सूफीज्म, वो ये सब चीजें जिनको ये बिद्दात अरबी लोग बोलते थे, सल्फी लोग बोलते थे। तो क्या हुआ कि सडनली उनके पास पैसा भी आया और सडनली इज्जत भी आ गई। तो क्या हुआ कि देन दे बिकेम मेन स्ट्रीम। और वो बहुत मतलब कोई मतलब 40 साल पहले कोई किसी लड़की को रोक के बोलेगा सड़क पे, कश्मीरी लड़की को, कि ये क्या पहना है, तुमको किसने इजाजत दी, सवाल ही पैदा नहीं होता था, किसी की जुर्रत नहीं होती थी। लेकिन आज जो है ना 5 साल पहले, 10 साल पहले, 1 साल पहले देखोगे तो वो जो है ना वो जुर्रत आ गई। क्या वो इसलिए भी है कि जो यहाँ के कश्मीर के जो, मैं कॉन्टेक्स्ट छोटा बोल रहा हूँ लेकिन एग्जाम्पल ये है कि वहाँ के जो सूफी वगैरह थे, पॉलिटिकल पावर की वजह से उन्होंने हाथ मिलाया अहले हदीस के साथ, जमात इस्लामी के साथ, जो लोग उनसे नफरत करते थे और बोलते थे कि ये मजार परस्त है और ये है। लेकिन मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, वो जो ग्लोबल, वो जो इल्यूजन है, मिराज जो है कि सब मुसलमान इकट्ठे मतलब वो हो जाएगा तो फिर हमको कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक पाएगी, तो वो सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने 1987 में जो ये किया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो वो सूफी लीडर थे जैसे काजी निसार वगैरह, तो उन्होंने जिनके साथ हाथ मिलाया था उन्होंने ही उनको मार डाला। तो मतलब ये कि इससे क्या होगा कि अब जब जो सऊदी का पैसा था और जो हीट था जिसकी वजह से ये सारा जो है ना, हमको मतलब शादी होती थी, कोई बोलता था कि अरे सऊदी रिटर्न, कोई अरे सऊदी में देखो वहां कोई क्राइम नहीं होते हैं, वहां सीधा गला काट देते हैं, वो करते। तो वो चाहते थे कि वो सब चीजें जो है ना इधर आ जाए। लेकिन अभी क्या होगा, अभी उनको हंसेंगे लोग। तो ये जो है इस तो वापस जो पुशबैक है, नॉर्मल जो मॉडरेट, जो मतलब ठीक है मतलब मानते हैं लेकिन कट्टर नहीं है। क्या है मतलब लड़कियों को पढ़ाएंगे, खुश होंगे कि कॉलेज जाते हैं, उनके लड़कियों का इंस्टाग्राम अकाउंट भी होगा, खुद भी मानते हैं, लेकिन कट्टर नहीं है। कट्टर परस्ती जो आई थी सोसाइटी में वो खत्म होगी, क्योंकि अभी पुशबैक हो सकता है। क्योंकि जो उनका क्या बोलते हैं, कश्मीरी में पीठ बोलते हैं, या बोलेंगे कि जिसका उसको ताव था कि जानता है मैं कहाँ से आया हूँ कहीं, अभी वो खत्म होगा। अभी बोलेंगे कि अभी देखो कि कश्मीर में जो है पिछले 30 साल से जो है कोई मतलब बाहर नहीं है, कोई ये नहीं है सिनेमा हॉल, जबकि पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कंट्री में भी है। तो हमारी जो ये जो जैसे इसने बोला कि हम जो है ना कॉपी करने में बहुत है, तो जब ओरिजिनली चेंज होगा तो ये कॉपी किसका करेंगे, ये तो बंदर की तरह बेवकूफ बन जाएंगे। तो क्या होगा कि वापस ऐसा टाइम आएगा, और वो तो आने वाला ही है वैसे भी, चाहे सऊदी अरेबिया करता, कि वक्त ऐसा आने वाला है कि फिर से जो हार्डकोर जो कट्टर पर पसंद होगा कोई रिलीजियस वाला, उसको नौकरी से, शादी से, बहुत सारी चीजों से, तो फिर वो अल्लाह को अपने मतलब ब्रोज के साथ जाएगा तबलीग के लिए, तो जाने दो। लेकिन इससे जो है, जो तुमने नेशनलिज्म का कहा कि नेशनल इंटरेस्ट, तो हम जो है, हम हमारे मुसलमान जो है नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखते हैं कभी। जो शिया होगा वो ईरान के तरफ का है, वो उन्होंने क्या इशारा किया क्या करना है, और जो सुन्नी थे वो सऊदी अरबिया की तरफ। तो जब मतलब ईरान के लोग जो है वो तो पूरे पक गए हैं इससे, मतलब जो है ना जो वहाँ की हुकूमत है, रिजीम, तो वहाँ के तो ऑलरेडी तैयार है। सऊदी अरबिया के सिर्फ रिच लोग में भी तैयार है, नॉट द पुअर वंस। क्योंकि क्या हो गया कि ये जो है ये रेगिस्तान में पार्टियां करते थे, ये नया कुछ नहीं है। वहाँ जो है फॉरेनर्स आते हैं, वहाँ वो अकाबुम का वो फैल्कनरी होता है, बहुत पैसा आता है, बहुत आर्म्स स्मगलिंग होती थी, बहुत वो होता था। तो ये सारी चीजें उन्होंने की। क्या
हमारे मुसलमान लोग जो है इधर के हैं वो नेशनलिज्म नहीं देखते हैं कि कोई जो है मतलब कोई उनसे थोड़ा गोरा होगा, थोड़ा बाहर से आएगा, थोड़ा मतलब अपर कास्ट होगा तो वो जो है उसके सामने उसी को बाप बना लेंगे। तो आपने बोला कि इससे क्या सीख सकते हैं हम? इससे ये सीख सकते हैं कि हमारे पास जो था कश्मीर में, इंडिया में जो मुसलमानों ने जो कमाया था, एक ऐसा चीज कि जिस तरीके से कि वो जो है, मैं नहीं बोलूंगा कि परफेक्ट था, लेकिन कम से कम एक कोशिश दिख रही थी कि वो जो है वो तकफीरी नहीं थे। तकफीरी मतलब कि किसी को नॉन मुस्लिम करार देते, वो करते। तो ये जो था ये एक ऐसा था कि अगर कोई मतलब हिंदू सेंट को भी के मतलब उस पर भी जाता था आश्रम में या कुछ, तो इट वाज नॉट लुक डाउन अपॉन, उसके बारे में नहीं बोलते थे। तो जो इससे अच्छा ये होगा कि सऊदी अरेबिया का जो इमेज था कि ये जो है ये गाइड है, ये अमीर है, मुस्लिम कम से कम सुन्नी सुन्नी मतलब लोगों का, मुसलमानों का। तो वो जब उनका ये इमेज जब अब मतलब वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लड़की का काम करना बहुत जरूरी है, उनके दिल से वो रिफॉर्म आए या पैसों के लालच से वो मैटर नहीं करता है, फाइनली पैसा ही डिसाइड करता है। तो वो ये सारी चीजें जो है, इससे जो हमारे जो औरतें हैं जो लड़ रहे हैं उन हुकूक के लिए, तो उनका काम आसान हो गया, क्योंकि उनको अथॉरिटी एक थी जिसका यूज करके उनको दबाया जाता था, अभी वो अथॉरिटी रही नहीं। अभी लोग जो है फ्री हो गए, मुसलमान फ्री हो गए, अभी मुसलमान का खुदा के साथ डायरेक्ट राब्ता है, अभी कोई बीच में कोई अमीर और अमीरुल मोमिनीन वगैरह नहीं है। Alright, ये great, बहुत अच्छी बात है। great. So last question, I'll throw it up to all. I would want Arshia to take it first, and then Soleh and Amna could take that. There is a section of people in India जो after this decision कह रहे हैं कि अब हमें भी apprehensions हैं, especially non-Muslims में, कि बैन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। तो उस और कुछ कह रही है कि नहीं। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो एक प्रीचर ऑर्गेनाइजेशन, और जब तक कोई लिंक ना हो, जैसे कि उनके मेन स्पोक्सपर्सन ने भी कहा कि हम नकारते हैं सऊदी के स्टेटमेंट को और हमारा कोई लिंक नहीं है। प्रीच करना वो तो एक फंडामेंटल राइट है। ऑफ कोर्स अगर लिंक्स पाए गए और आइडियोलॉजिकल अलग बात है। तो एक कैसे कम्युनिकेशन अब हो सकता है इंडिया में वेरियस कम्युनिटीज में इसको लेके, और गवर्नमेंट का क्या रहना चाहिए रवैया कि जहां एक बैलेंस रहे कि एप्रीहेंशंस भी समझे और ये भी समझे कि पॉलिटिकल मूव है सऊदी से। तो आर्शा आपसे स्टार्ट करते हुए। देखो खालिद, जो इंडिया का इथॉस है हमारा, हम डेफिनेटली इसको बैन तो नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा आपने कहा एक ये प्रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे आज भी याद है जब 2 साल पहले पैंडेमिक शुरू हुआ था, इनके वीडियोस आने लगे जहां पे दे वर रिफ्यूजिंग कि इनॉकुलेशन करना, वैक्सीनेशन करना। इन्होंने जो हंगामा मचाया हॉस्पिटल्स में, नर्सेस को उन पर स्पिट कर रहे थे, किक कर रहे थे डॉक्टर्स को, काफी काफी रकस क्रिएट किया था। ऑफ कोर्स वो एंडेंजर कर रहे थे लाइव्स को, लेकिन आई बिलीव कि जब तक कोई टेरर लिंक कंप्लीटली फुल प्रूफ टेरर लिंक ना पाया जाए, आई डोंट थिंक इंडिया स्टेट गवर्नमेंट भी उसको बैन करेगी, और ना ही करना चाहिए। इट्स मोर ऑफ अ इररिस्पांसिबल ऑर्गेनाइजेशन, आई वुड से सो। And जैसा कि as compared to Jamaat Islami, which is very shrewd and clever and actually has terror links and actually is working with the Muslim Brotherhood globally, उसके comparison में तबलीगी are more like इररिस्पांसिबल, जो अपने इतने ज्यादा दीनी में मुलविस हैं कि उनको साइंटिफिक या रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड में कुछ नहीं। इफ यू सी द वीडियोस, क्योंकि उनको समझा रहे हैं डॉक्टर्स कि भाई आपको वैक्सीनेशन करना जरूरी है, आपको आइसोलेशन करना जरूरी है, आपके केसेस पाए गए हैं, एंड वहां से वो कहना कि अल्लाह देख लेगा, it's silly and stupid in the 21st century, but it's harmless in that way. तो मैं नहीं समझती कि इंडियन एथॉस ये परमिट करेगा उनको बैन करना। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जो हमारे रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटीज हैं, जैसे बरेलवीज हैं, इवन फॉर दैट मैटर जो हमारे जो even the wing of the Jamaat Islami can pick this up, even the Shia organization can pick it up and start actually educating them कि आपने अगर दावा करना ही है तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबली करें। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत
क्योंकि हमें हमारा जो राइट ऑफ लाइफ है, जो आप एंडेंजर कर रहे थे जब आप मना कर रहे थे आइसोलेशन में जाने के लिए, तो वो अगर थोड़ा सा हो सकता है. बैनिंग इज एक्सट्रीम until and unless a terror link is formed. Again, terror link किसी इंडिविजुअल का देखा जाएगा, है ना. Right. वो शायद अब इस ऑर्गेनाइजेशन से इंडिपेंडेंट काम कर रहा हो, ये भी हो सकता है. ठीक Right. है. सोले, आपका इस पे क्या है व्यू? मैं चाहता हूँ कि इन पे निगे जो है ना बनी रहे, इनको रिपोर्ट देने चाहिए, इनका पैसा कहाँ से आया, अगर वहाँ लोकली ये किया, इनको फुल जो है ये देना पड़ेगा जवाब. Right. क्योंकि Amna, ये how- रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि मतलब जो है ना किसी ने किया, वो उसने खुद अपने बलबूते पे किया, हमने कुछ नहीं किया. तुम घर दे रहे हो. 9/11 के लिए जो टेररिस्ट थे वो दिल्ली के तबलीगी जमात की मस्जिद में रहे थे. Alright. तो Amna, इनको पनाह मिलती है ना. right. Amna, what would your view be society wise, ताकि communal harmony रह सके, and government wise कि how should we deal with the organization? आई डोंट बिलीव इन बैनिंग थिंग्स, लाइक पूरी तरह से बैन करके भी आप अगर आप बैन कर लोगे तो वो किसी और नाम से आएंगे, किसी और तरीके से अपना काम स्टार्ट करेंगे. Right. उससे तो अच्छा है कि आप उनको बैन ना करो, मॉनिटर करो, क्योंकि वो एग्जिस्ट तो करेंगे और उनका जो बन चुका है नेटवर्क वो बहुत स्ट्रांग है, उसमें काफी लोग हैं. Right. एक चीज इनकी अच्छी बोल सकते हैं या फिर लेस डेंजरस बोल सकते हैं कि ये पॉलिटिकल नहीं है. Right. ओपनली बोलते हैं कि हम पॉलिटिकल इस्लाम पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे, ना हमारा कुछ उसमें इंटरेस्ट है. Right. इनका इंटरेस्ट है इस्लाम के अंदर सबमिशन करने का और कैसे आप अच्छे से अच्छे मुस्लिम बन सकते हैं. Right. सो बट ऐसा भी है कि इसमें हिपोक्रेसी भी है, क्योंकि इनके जो लीडर हैं उनके काफी अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन पाए गए हैं अगर आप देखोगे तो. Right. तो एक बोलने और एक रियलिटी के बीच में एक फासला होता है, वो भी वहां पे है. बट एक चीज, बीइंग एन इंडियन नेशनल सिटीजन, जो मुझे लगता है कि जहाँ पे स्टेट को बहुत ध्यान देना चाहिए वो है कि काफी बाहर के लोग, जो आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं, वो आते हैं तबलीगी के काम के लिए, राइट. वो जो नेटवर्क बनता है, एंड मोस्टली चांसेस नहीं है कि उनको वीजा मिलता होगा रिलीजियस वर्क का, वो टूरिस्ट वीजा पे ही आते होंगे. तो उस पे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उस फंडिंग पे, उन लोगों पे जो आ रहे हैं. एंड जमात का जो फंक्शन होता है बेसिकली, वो जगह जगह पे अपने मरकज बना के रखते हैं. उस मरकज के अंदर जो लोकल लोग काम करते हैं वो रहबर कहलाते हैं. जो बाहर से डेलीगेट आते हैं उनके लिए वो रहबर होना जरूरी है, अदरवाइज कौन उनको इंट्रोड्यूस करेगा लोकेलिटी के अंदर. ठीक है. तो वो लेकिन बाहर से आते हैं और फिर वो मोहल्ले मोहल्ले में जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, और अंदर वो क्या प्रीच करते हैं हमें ये भी पता नहीं है. बेसिकली वो कहते तो यही है कि हम 5 पिलर ऑफ इस्लाम सिखा रहे हैं, बट हमें कैसे मालूम पड़ेगा बिना मॉनिटर किए हुए. तो एक मतलब उनका ना नेटवर्क बहुत अच्छा है इंडियन सोसाइटी के गली गली में घुसने का, जो उन्होंने बनाया है. Right. तो मैं तो बोलूंगी कि स्पेशली जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से जो फंडिंग आ रही है, उस पर तो पूरा ध्यान रखें अपने देश के इंटरेस्ट के लिए. एक चीज खालिद मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, जी. क्योंकि मैं पशमानदा लोअर कास्ट मुस्लिम सोसाइटी से आती हूँ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी गई है कि ये ऑर्गेनाइजेशन भी कास्टिज्म से बिल्कुल अछूता नहीं है. इसके ऊपर जो स्कॉलर हैं महमूद फलाही जी, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें बताया है कि किस तरह से जब सक्सेशन हो रहा था, जो अमीर बनते हैं, उसमें जब पहली बार जो इंडियन ओरिजिन का जो मुस्लिम था, जब उसको अमीर बनाया गया, तो इन लोगों ने पॉलिटिक्स खेली और इन्होंने बोला कि ये कैसे हो सकता है कि शेख और सैयद के पास ना जाए. तो एक भाई जने थे, उनको सपना आया, दे सॉ अ ड्रीम, कि एक मशीन थी जो मेरे पुराने वाले लीडर चला रहे थे, अब वो मशीन मैं चला रहा हूँ. तो इस सपने का क्या मतलब हो सकता है? इस सपने का मतलब ये हो सकता है कि मौलाना मरेठी क्या नाम है, मेरठ, मौलाना मेरठी जो थे, जो इंडियन ओरिजिन के थे, उनको नहीं जाना चाहिए लीडरशिप, हम शेख सैयद के पास वापस आना चाहिए. तो उनको हटा दिया जो इंडियन ओरिजिन के थे. आज तक वो अशराफ और
हमेशा जो हायर कास्ट है उन्होंने अपने पास लेके रखा हुआ है। तो वो बोलते तो हैं कि इक्वालिटी है, हम प्रॉफिट की मैसेज को सिखा रहे हैं, बट फॉलो तो नहीं करते हैं उसको इन स्पिरिट इन लेटर। अगर आप फॉलो करते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक पाशमानदा मुस्लिम के अमीर बनने से उसका, राइट। एंड उसको सिर्फ हटाया नहीं है, उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन किए हैं ना लीडरशिप में कि कौन कौन हमारा लीडर रहा, उसमें से भी उसका नाम हटा दिया है। 2 महीने 1 महीने तो वो उस पोस्ट पे थे, वहां भी नहीं छोड़ा है। तो इतनी कास्टिस्ट मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है। एंड हमारे जो नॉर्मल इंडियन मुस्लिम है उनको ही इस्लाम सिखाते हैं, उनको ही सिखाते हैं कि आप अपने ही कल्चर से नफरत करो, क्योंकि अगर आप नहीं बनते हो उनके जैसा, जैसा वो आपको बोल रहे हैं, तो यू आर स्टिल हिंदुआना और ऑल दोज थिंग। तो आई वांटेड टू ऐड दैट थिंग, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मासेस को कंट्रोल कैसे किया जाता है, हम इंडियन मुस्लिम को हमारे इंडिया से ही नफरत करने कैसे सिखाया जाता है, जो कि दिखने में बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता, बट इंटरनली चल रहा होता है प्रोसेस। तो उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए थी। राइट। आई थिंक आज के डिस्कशन में 3 चीजें तो उभर के आई सौल्या, आर्शिया और आपसे, कि बैन तो सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मॉनिटरिंग डेफिनेटली, अकाउंटेबिलिटी लॉज के विद इन, और कोई भी जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करे तो ये भी एक डेमोक्रेटिक राइट तो हम मानते हैं, यू नो, उन्हें चाहिए। सेकंड, ऑब्वियसली हम सऊदी के इस असेसमेंट को भी नहीं मानते, क्योंकि खुद ही उन्होंने वो फंडिंग की है। और तीसरी कि ये मॉडरेट मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ी एक जीत है, चाहे डायरेक्ट ना हुआ हो उस चीज के लिए, लेकिन जो एक शांति जिंदगी, पॉलिटिकल मजहब ना यूज करें। और आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वी वुड लीव इट our मैसेज, लाइक यू नो, जो लास्ट सर्मन, जो लास्ट स्पीच रही है होली प्रॉफिट की, जिसमें इक्वालिटी की बात कही कि ब्लैक यू नो व्हाइट से कम नहीं है और नॉन अरब अरब नहीं, तो काश इंडियन मुस्लिम्स भी ये समझे, और अब तो कम से कम समझे कि हम प्रोग्रेसिव लिबरल थे, हमें बताया गया कि कल्चर मजहब है, उनके कपड़े पहनो, वो उनसे इंफीरियर देखो, सब सेम ही है, बस इन 4 चीजों को, कल्चर, रिलीजन, पॉलिटिक्स को अलग रखो, और देश के हित में ही मजहब है आपका। तो आई थिंक डेफिनेटली उस हिसाब से तो ये हिस्टोरिक चीज है। Thank you, Saulya. Thank you, Amna. Thank you, Arsha. It was a great discussion. Thank you for coming. Thank you.